Hello students, today I am going to discuss on slavery system and in the context of France, in the context of French colonies, and I will discuss on how slavery was abolished from French colonies and what is slavery. When we talk about slavery, then we can say that when a person is treated as the property of another person, when a person is treated as the property of another person, this person is usually called a slave with the honor being called a slave master. आप समझ गए होंगे, एक व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्ति की संपत्ति माना जाता है और वो व्यक्ति उसका गुलाम हो जाता है, वो जब जो कहता है, जैसे कहता है, पूरे आजीवन उसके लिए उसको काम करना पड़ता है। ये सिस्टम जो है स्लेवरी सिस्टम है, ठीक है। और दिस सिस्टम वाज ए मेन प्रॉब्लम ड्यूरिंग 17th century. It was started in 17th century and it was main problem of French colonies. As we know that message of liberty, equality and fraternity sprang to all over world after French Revolution. And after French Revolution, it was a main question that slavery should be abolished or not. National Assembly always discussed on this matter, but National Assembly did not take any step to abolish slavery. Then, what was slavery during that time? Actually, in Europe, in France or in Europe, there was a great demand of tobacco, indigo, coffee, etc. And French had many colonies, many overseas colonies. These, such as in Caribbean island, French had many colonies such as Martinique, Guadeloupe, Saint Domingo, and French merchants or French plantation owners planted their coffee, indigo and tobacco, etc. And these colonies supplied these items to France or all over Europe. But Europeans were not ready to work outside Europe. That means there was a great scarcity of labor in Caribbean island. Europeans were reluctant to work at a unknown land, at an unfamiliar place. So French merchants fulfill this problem with a slave trade. स्लेव ट्रेड के द्वारा फ्रांस के लोग या यूरोप के लोग जो थे वे दूसरे जगहों पर जाकर काम करना नहीं चाहते थे। यूरोप की बहुत सारी कॉलोनियाँ थी, फ्रांस की या यूरोप के दूसरे देशों की बहुत सारी कॉलोनियाँ थी। उन कॉलोनियों से तंबाकू, कहवा, है ना, टी वगैरह का सप्लाई जो है उन जगहों पे होता था, लेकिन वे दूसरे जगह जाकर के काम नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ लेबर की खास कमी थी और उस कमी को स्लेव ट्रेड के द्वारा उस समय पूरा करने का प्रयास किया गया। ये स्लेव ट्रेड एक्चुअली क्या था, दूर देश से जा कर के, है ना, दूर देश से जा कर के लोगों को परचेज करके एज ए स्लेव परचेज करके लाना और यहाँ पर उनको जो है प्लांटेशन में काम कराना, ठीक है। और इसी से जाकर के पूरे यूरोप को जो है बहुत सारे जो कमोडिटीज़ थे, ठीक है ना, बहुत सारे जो गुड्स थे उसकी आपूर्ति हुआ करती थी, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने कहा, इट वाज फुलफिल्ड बाई ए स्लेव ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो व्हाट वाज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? Triangular slave trade means it was a trade between three continents: Europe, America, and Africa. In this way, French merchants sell to African countries, African coast, sell to American coast, and they at that place they met with local chieftains, and local chieftains provide many laborers, slaves. They bought slaves from local chieftains, and then the laborers or slaves were branded and shackled, and they were tightly packed in a ship, and then they went for a long voyage. वहाँ पर मजदूरों की, दासों की, गुलामों की खरीद की जाती थी बॉर्डेक्स से, नाइनटेक्स से। लोग जो हैं बॉर्डेक्स, नाइनटेक्स पोर्ट्स के थ्रू जो है वे अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे सैलिंग करके। वहाँ पर स्थानीय जो सरदार हुआ करते थे, स्थानीय मजदूरों का आपूर्ति करने वाले, वे मजदूरों को पकड़ करके लाते थे, और पकड़ करके लाने के बाद उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, उनकी सैकलिंग कर दी जाती थी। सैकलिंग मीन्स आप समझते होंगे, ब्रांडिंग मतलब एक ठेकेदार जो है कुछ लोगों को पकड़ करके लाया, उसकी ब्रांडिंग कर दिया, ये मेरे ठेका में लाया गया है। सैकलिंग की जाती थी। उसके पैरों में सिकड़ बांध दिया जाता था, हाथों में सिकड़ बांध दिया जाता था, और बांधने के बाद उसको टाइट जानवर की तरह जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था, एंड देन उसको लॉन्ग 3 मंथ्स लॉन्ग वॉयज पर चला दिया जाता था। 3 मंथ 6 मंथ लोग जो है वो जहाज़ों में ठूंस करके उनको 3 महीने की समुद्री 6 महीने की समुद्री यात्रा पर जाते थे। वे लोग ले जा करके फिर उनको ले जा करके कैरिबियन आइलैंड के जो वहाँ पर जितने कॉलोनीज थे, उन कॉलोनीज में ले जा करके, कॉलोनियल प्लेसेस थे वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पर ले जा करके जो प्लांटेशन ऑनर्स होते थे उनको बेच दिया जाता था। और तो इसका सीधा मतलब है कि जो स्लेव्स थे, स्लेव्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके उत्पीड़न के द्वारा यूरोप में, फ्रांस में, यूरोप में जो है कॉफ़ी, टी, टोबैको, इन सब की चीज़ों की आपूर्ति होती थी। सवाल ये है कि जब भी नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली के हाथ में, मतलब जब भी आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद जब भी मौका मिला, एक सुधार आया, लेकिन केवल स्लेव के मुद्दे पर, ऑन द इशू ऑफ स्लेव्स, केवल डिस्कशन होता रहा, कोई मेजर स्टेप नहीं लिया जा सका। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली के लोग जो हैं बिजनेसमैन, यानी जो थर्ड स्टेप के बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे डर था कि उनका इंटरेस्ट हमारे नेशनल असेंबली में भी है, और अगर हम स्लेव पर क्वेश्चन उठाते हैं तो वो जो है स्लेव्स को फ्री करना, दैट मीन्स उनके बिजनेस पर डायरेक्ट असर डालना। ठीक है, तो इस तरह से पूरे लंबे दिनों तक ये संघर्ष होता रहा, ये क्वेश्चन जो है चलता रहा। लेकिन कुछ कन्वेंशन, मतलब कि जो 94 में कन्वेंशन का, जो असेंबली का जो कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन में थोड़े देर के लिए, बहुत कम समय के लिए स्लेव जो थे फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेव्स को फ्री किया गया था, बट ए शॉर्ट टाइम मेजर प्रूफ हुआ, ओनली फॉर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स दैट मीन्स 99 के बाद नेपोलियन ने जब अपना प्रयास शुरू किया फ्रांस को अपने कब्जे में लेने का, और 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का क्राउन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना, तो उसने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी सिस्टम को। और लास्ट में बहुत ही प्रयास के बाद, है ना, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, स्लेवरी वाज एबोलाइज्ड फ्रॉम फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। 1848 में फ्रांस से स्लेवरी सिस्टम जो है वो ख़त्म हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है स्लेवरी के बारे में कुछ जान गए। आशा है आपको भी पता चला होगा, अच्छा लगा होगा। तो स्लेवरी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, ठीक है,
तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लोग जो है उस पर फिर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी आएगा, मतलब आफ्टर बिफोर रिवॉल्यूशन, बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द कंडीशन ऑफ वोमेन क्या सुधार हुआ, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है स्लेवरी सिस्टम कैसे कैसे ख़त्म हुआ, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं वोमेन कंडीशन के बारे में या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो आपके पास कुछ अगर इंक्वायरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उस पर बात करेंगे। थैंक्स।